गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, जय हिंद एंड प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्चिंग अहेड। इंडिया मार्चिंग अहेड क्यों? क्योंकि अगर आप 2023 देखेंगे, जैसे खत्म होने वाला है, आप देखेंगे कि इंडिया का पूरा जो द स्टेटस ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड। और आगे भी अगर हम देखेंगे तो काफी इंडिया इज राइजिंग और सब बोल रहे हैं इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए हमने सोचा कि इंडिया मार्चिंग अहेड के बारे में बात करेंगे हम। और इस चीज के लिए बात करने, इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल राजीव नारायणन। गुड इवनिंग राजीव, वेलकम टू गनर शॉट, an interesting topic. And I thought let's discuss what happened in 23 and what's to happen ahead in 24 as India marches ahead. Yes, sir. Thank you, sir. Always a pleasure to be on your channel. And good evening to you and all the listeners. Yes, it's a very, I would say, a very interesting topic, a topic which has relevance because we are talking of a rising India. Everybody is talking of a rising India. You're marching ahead. But it is not like a march in a drill square. It comes with its own sets of challenges that you have to cater for. And because as you march ahead, there are others who feel or who might get left behind. They won't get left behind without a fight. So it's a march. It's a hard march, and we have to see what we can do to ensure that we can continue marching ahead. Yeah, I think so. Uh, you know, uh, we'll have to see what do we have to do when you're marching ahead is the crux of the problem. But to march ahead, I think we need to recount a bit what changed in 2023 for India. I think a lot Yes. changed in 2023. There are certain key issues like when you say you're rising, then there are certain uh, factors you have to see that are you rising, then what are you geos in the geopolitical and the geostrategic environment, what is the importance has come suddenly for you, like everybody wants to be friendly with you. What has happened? ऐसा तो हमने Yeah. पहले देखा नहीं था. We have always been here. We have always been struggling with our rise. Now suddenly everybody wants to be goody two shoes with you. मतलब क्या हो गया? And Yeah. then what kind of challenges will this bring? It doesn't happen just because somebody is goody two shoes with you doesn't mean that he is your bumchum and a real friend and feels good for you, wants to do good for you. No, it's more, I would look at it rather all these relations which are coming up, which are evolving, are rather transactional in nature. Yeah, they कि are भाई completely transactional. आपसे मैं क्या गेन कर सकता हूं और हम उस वक्त देखते हैं कि हम उनसे क्या गेन कर सकते हैं. कोई भाईचारा नहीं है इसमें. अगर हम I भाईचारा completely agree लेके with you. सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. हाँ, फिर नहीं आपकी वो तो राइज वहीं की वहीं रह जाएगी. वहीं नहीं, आप तो हम देख ही रहे हैं. एक जगह पे देयर इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएसए, और उसके साथ साथ ये पनून केस भी चल रहा है, और हाँ निज्जर बिल्कुल, और कुछ ना पनून कुछ केस भी चलता रहता है. तो कुछ ना कुछ चलता रहता है. मैंने थोड़ा देखना है. लोग कहते हैं इट्स अ वूका वर्ल्ड. इट इज अ वूका वर्ल्ड. वूका मतलब बहुत वॉलेटाइल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. यू कैन यू इज Whatever it is. अनसर्टन है और बहुत एम्बिगुअस है. अभी आपने जैसे बोला कितना एम्बिग्विटी है हमारे रिलेशंस यूएस के साथ ही. एक तरफ आपसे हाथ मिला रहा है, दूसरी तरफ दूसरी कानून तरफ का केस कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को मदद कर रहा है. मदद मतलब इट्स कर वेरी रहा है. एम्बिगुअस कि क्या हो रहा है. हवे में है, आने से मना कर रहा है. अब इट हैज इट्स ओन इम्पैक्ट इफ ही डजंट कम हियर. देयर इज अ रीजन बिकॉज उसके साथ क्वाड का मीटिंग होना था. अब वो आने के बाद हमारा बजट का सेशन जो भी छोटा चलना है वो चलेगा. उसके बाद तो हम इलेक्शन में हो जाएंगे. जब तक हमारा इलेक्शन होगा यूएस इलेक्शन मोड में होगा. तो क्वाड गई Yes. तेल में, क्वाड की मीटिंग.
यही एक विंडो था, यही एक when he विंडो could था have, जो यूएस ने मना कर दिया. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग it's a very ambiguous, it's a very VUCA sort of a relationship जो चल रहा है अभी. yeah, and तो not only उसी के that, बाद the internal dynamics of USA also could change. यस, वी नेवर नो कि अगले साल We इलेक्शन never के बाद know. हमें, Yeah, कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडीए आएगा, कुछ का मानना है कुछ आएगा. वी डोंट नो एग्जैक्टली we कि don't know. 2024 में दोनों तरफ क्या आने वाला है. और दैट किस डिपेंड्स ऑन आकार द, में आने वाला है? हाँ, दैट नहीं, किस डिपेंड्स ऑन द आकार में आने वाला इलेक्टोरेट. दैट है? Yeah, डिपेंड्स ऑन द इलेक्टोरेट. वी ऑल कैन कीप गेसिंग, नहीं नहीं ये अच्छा कर रहा है, ये आएगा, नहीं वो अच्छा कर रहा है, वो आएगा. यू डोंट नो द इलेक्टोरेट्स माइंड. द केस इन पॉइंट इज, अपने ये जो 5 इलेक्शन हुए थे स्टेट का, जो 3 मेजर स्टेट्स थे, उसका क्या क्या बातचीत हुआ था और क्या निकला, क्या हुआ है? क्या हुआ. तो इसी तरह से नेशनल लेवल में भी क्या बातचीत हो रहा है वो बात अलग है, एक्चुअल क्या निकलेगा वी डोंट नो. सो इट इज, एंड सेम उधर भी है. एंड एक्चुअली somebody had counted and mentioned to me कि world over there are almost about 50 plus elections that are going to take place Yeah, in 2024. yeah, So yeah. 2024 is very crucial because अगर उन जहाँ पे जिन इलेक्शन, जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं उनके साथ हमारे रिश्ते बन रहे थे, अब जो नया आएगा उसके साथ कैसा उसके साथ बनेगा. कैसे केस इन बनेगा? पॉइंट इज मालदीव्स. Yeah, मालदीव्स. सो एने दैट्स व्हाई आई सेड कि ये पूरा ट्रांजैक्शनल है, कोई भाईचारा नहीं है इसमें. बड़े ध्यान से चैलेंज को फेस करते हुए आपने आगे बढ़ना है. एंड जो yeah. चैलेंज फेस, हाँ सर. Actually, the सर, first point which you have made is that 2024 is going to be very uncertain and very ambiguous. यस, In comparison to 2023, already I see 2023 was quite sure. We were quite sure where we were. 2024, we might not be sure where we are. कुछ नहीं पता ना सर. इतने इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन क्या निकलेगा, कौन सा इलेक्टोरेट क्या करेगा, यू नेवर नो. Never know. एंड Yeah, दैट इज वेयर आई से दैट इट इज ऑलवेज ट्रांजैक्शनल. एंड आपको केयरफुली, एंड जो भी हम कदम उठा के चल रहे हैं, ये देखना है कि देयर हैज टू बी सर्टेन अमाउंट ऑफ बाईपार्टिजानशिप इन व्हाट यू आर डूइंग. अदरवाइज yeah. You need आपका वही होगा, 2 steps फॉरवर्ड 1 step बैक. backward. Yeah, we need to be very careful where you're going to commit yourself, where you don't commit yourself, Commit yourself. and where you commit yourself, you have to आप लंबे हद से का get into long-term arrangements with people Yes. so that the change of a government shouldn't affect our equations with that country, Country. right? If it So- does affect, it should be for the positive. Yes. That should be our aim, right? So, and at the same time, whatever we have to do should not be at the cost of old friends. That's also there, Yes. right? And of course, then the volatility of the global situation. जिस तरीके से यूक्रेन में, So it's, I would say, not only the government, and this is where in the world today people to people contact becomes very important, especially amongst democratic countries. Because autocratic country may it's nice to have people to people contact, but they really don't have say, much say. Yeah, I completely agree with you. So I think you have a presentation. Yes, We'll sir, go yes. through the presentation and then we'll take a Sir, right? Okay. you're So should I put uploading it on? हाँ, Yeah. sure. Yeah. So India marching ahead, the rise of Bharat. तो नेक्स्ट बेसिकली इसमें ये देखेंगे कि भाई हम राइज कर रहे हैं, तो बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, और हमारा चैलेंज क्या मिल रहा है हमारे राइज और स्टेटस को, व्हाट इज द वे हेड, क्या कर सकते हैं. एंड स्पेशली लुकिंग एट 2024 एंड बियॉन्ड. 2023 तो अभी खत्म हो रहा है. नेक्स्ट, तो राइज ऑफ भारत में 4 की कैटेगरीज काफी हैं, बट 4 की कैटेगरीज हैं. डेमोग्राफी, विच इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट वी हैव, द इकोनॉमी, द इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड डेमोग्राफी डिविडेंड को अगर आपने यूज करना है तो ये स्टेम एजुकेशन एंड या स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लास्ट वील टच ऑन स्टेम.
STEM is science, technology, engineering and अपना mathematics. So when you look at the demographic dividend of large economies, अभी आपको दिखा रहा है, जो ब्लैक में दिखाया है, कि इसमें दिखा रहा है 2055 तक हमारा डिविडेंड रहेगा 35 साल के, 37 साल एवरेज एज रहेगा, अभी 28 पॉइंट समथिंग है. बट इफ यू लुक एट द ग्राफ बिलो, 2060 में भी आपका इन्हें योर पॉपुलेशन विल नॉट बी दैट ओल्ड. 49.5% 37 ईयर्स के होंगे एंड मतलब सॉरी 49.5% 37 ईयर्स से ज्यादा होंगे. इफ यू गो टू 2060, 52% ही हैं जो ज्यादा होंगे. तो 48% भी अगर आपके पास एक वर्किंग पॉपुलेशन एज रहेगा आपके पास पॉपुलेशन का, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड दैट यू हैव. इफ यू लुक एट चाइना, मतलब ब्राजील, थाईलैंड और ऊपर चाइना दिखाया. 20, ये पुराना थोड़ा स्लाइड है कि वो 2031 में बोल रहा था खत्म हो जाएगा, उसका ऑलरेडी खत्म हो गया. द प्रॉब्लम विद चाइना इज काफी वो फज करता रहता है अपना रिपोर्ट, सच नहीं बताता. तो इसीलिए सडनली वो फाइंड कर रहा है कि उसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो खत्म हो गया है. 2020 2021 में उसका खत्म हो गया. तो ये 2031 तक जो दिखा रहे हैं इस स्लाइड में, वो खत्म है चाइना का. चाइना गेम इज ओवर एज फार एज द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज कंसर्न. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड सर? Yeah. इसमें दिखा रहा है वर्कर बूम, मतलब WAP मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन. सो मैक्सिमम 2030 में इंडिया के पास होगा और फिर ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है. तो यू कैन सी टिल द एंड ऑफ द ईयर सेंचुरी यू विल स्टिल हैव ओवर 50% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन आपके पास स्टिल रहेगा. ये रीजन है सब आपके तरफ दौड़ रहे हैं कि आपके पास रहेगा वर्किंग एज पॉपुलेशन और इसको हमने मैनेज करना पड़ेगा. ये केवल पॉपुलेशन ज्यादा होने से कोई फायदा नहीं है. टिल यू हैव नॉट मैनेज, प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया है, स्किल डेवलपमेंट नहीं दिया है एट ऑल लेवल्स. स्किल डेवलपमेंट केवल आज के टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, आगे भी हमने गना शॉट में पहले किया था, दी एमर्जिंग एंड इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज. अगर उसमें आपने इनको ट्रेन नहीं किया है तो आपका कोई फायदा नहीं है. जैसे इसमें हम अफ्रीका का वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं ले रहे हैं. क्यों नहीं ले रहे हैं? है उनके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन, बट स्किल डेवलपमेंट नहीं है. उनके पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है स्किल डेवलपमेंट के लिए. तो वो वर्किंग एज पॉपुलेशन रख के क्या करोगे? दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज. में एनडीए में बताया जाता था, द फिल्म जो एनडीए में होता था, उसका बड़ा अच्छा फ्रेज है जो मैं याद आता है कि एन आइडल माइंड इज एन एंग्री माइंड. और अदर इंग्लिश में स्कूल में पढ़ाते थे, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. तो अगर आपने इनको सही तरीके से स्किल नहीं किया, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. देन वो दूसरे रास्ते में भी जा सकता है. अगर क्योंकि स्किल्ड नहीं है तो काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो इतना सारा पॉपुलेशन आपका, अगर सबको काम नहीं दे पाओगे तो प्रॉब्लम आएगा. सो हैविंग अ demographic dividend by itself is not the answer. Having proper skill development and having developed them and making sure that you are able to utilize them in the skills that you have trained them for, वो बहुत जरूरी है आपको. ये आपका एक चैलेंज यहीं पे मैं आपको दिखा रहा हूं. नेक्स्ट वी गो टू इकोनॉमी. तो एक स्लाइड पहले दिखाया था, ये भी स्टैटिस्टा का था, राइट में जो है पुराना, वो दिखा रहा था कि भाई 2023 में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, 3.8 ट्रिलियन पार करेंगे, यूके को पार करेंगे, एंड 24 और मे बी 25 में 4 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे. आज के तारीख में क्या हुआ है? 2022 में ही लेफ्ट स्लाइड में दिखा रहा है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं और इसी साल में 2 महीने पहले हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पार कर चुके हैं. ना इसमें हमें खुश होने की जरूरत नहीं है. द प्रॉब्लम यहां पे आता है पर कैपिटा इनकम पे.
पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। अगर हमको डेवलप्ड कंट्री होना है तो यू हैव टू गो बियॉन्ड 10 ट्रिलियन एंड हैव एन इक्विटेबल एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, देन यू विल बी डेवलप्ड। अभी आप मिडिल इनकम में ही फंसे हो। चाइना को जैसे कई लोग बोलते हैं मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गया है, डेवलप होने से पहले ही कोलैप्स हो गया है। दिस इज अ चैलेंज दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। तो ये ग्रोथ आपका 10 ट्रिलियन से ऊपर जाएगा तभी आपको तकरीबन तकरीबन आप बोल सकते हो कि आप डेवलप्ड हो सकते हो। हाँ, आपका अभी तक जो पहले हमारा पर कैपिटा जीडीपी था वो बढ़ गया है, डबल हो गया है, लेकिन डेवलप्ड का हमारा कितना 5,000 के करीब है, डेवलप्ड कंट्री 14,000 15,000 तक जाता है। तो मतलब आपको उतना बढ़ना है। अगर मैं 10-12 ट्रिलियन तक जाता हूं तो शायद मेरा पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ के 10 के आसपास आ जाएगा। अगर 10 के पास आ जाता है तो देन यू आर कंफर्टेबल। $10,000। एंड और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जापान काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, उन्होंने एक निष्पक्ष एनालिसिस किया है और उसके मुताबिक 2030 तक हमारा इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने का अंदेशा है और उसके 2-3 साल के बाद 2032-33 तक हम 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे, जो चल नारायणन बता रहे हैं, राइट। और उसके बाद क्या है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो राइट वाले स्लाइड में भी दिखाया गया है, जहां वो लाल गोल है, आप देखिए ऊपर चढ़ जाता है, राइट। वो है एक्चुअल राइज जो होने वाला है, पर उसका नींव जो है अगले 2-3 साल में लगने वाला। जो अभी नींव यहाँ हमें मिला है 2023 में, वो अच्छा नींव मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आगे जाके अगला 2-3 साल हमारे लिए बहुत ही निर्णायक होगा, क्या अगर हम वो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचेंगे कि नहीं, राइट। राइट, इसके पहुंचने के लिए हमें दो चीज देखना पड़ेगा। एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा है इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हम अभी बात करेंगे और लास्ट में जाने से पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर, वो भी हम बात करेंगे। या प्लीज गो अहेड राजीव, सॉरी इफ आई तो इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी यही बोला था कि हम कस्प पे हैं। अभी कस्प मतलब अभी शुरुआत है, सही चलेगा, चैलेंजेस को फेस करके आप जाएंगे तो ही होगा। एक तरह से मिसाल दूंगा कि घर का फाउंडेशन बन गया, फाउंडेशन आपने बना के रखा है तो वो घर तो नहीं हुआ ना, दीवार छत अभी लगाना है, लगना वो है। बाकी है। वहीं अगला चैलेंज आपको वहीं आएगा जब आप घर दीवार और छत लगाना शुरू करोगे, अपना घर बनाना शुरू करोगे, दैट इज द चैलेंज। अभी ये जैसे रेड राउंडल किया मैंने, ये आप कस्प पे आ गए हो। अभी आप देखो जैसे सर बता रहे थे, जो ब्लू लाइन है स्टीप होता जा रहा है, ये स्टीप है, मैथमेटिकली एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, लेकिन इकोनॉमी जो है उसमें काफी वेरिएशंस होते हैं, ह्यूमन फैक्टर आता है, कई चीज आते हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर ऐसे निकल जाएगा। और यही चीज वो ट्रैक करते हैं जो आपके देश के अनुकूल नहीं है। जब आपका ये असेसमेंट करते हैं तो देखते हैं आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वल्नरेबिलिटीज कहाँ हैं, फिर उसको टारगेट करेंगे। आपको भी अपने वल्नरेबिलिटीज देखने हैं, जैसे आपके रिसोर्सेस हैं, आपके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, आपके एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़रूरत होता है, आपको लेबर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्टमेंट नहीं होना चाहिए, जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसमें डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, आपके पोर्ट हैंडलिंग में डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, कई चीज़ें आते हैं इसमें। तो कई अब रिसोर्स आपका केवल अंदर से नहीं आता ना, बाहर से भी आता है, वो भी डिसरप्ट हो सकता है। सो इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो देयर आर मेनी वेरिएबल्स जो जिसको देख के आपको, तो जो राइज हो रहा है अभी, ये अभी
शाहरुख खान के पिक्चर के मुताबिक ये भी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बाकी है। नहीं, पर ये जो आपने बोल तो दिया है, ऐसे ट्रेलर है, ये पिक्चर अभी बाकी है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये पिक्चर ऑलरेडी शुरू हो गया नहीं, और शुरू तो इसका हो गया है, लेकिन हो पिक्चर गया, बाकी है ना अभी खत्म होने में, बाकी है। वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वो अभी क्योंकि जैसे जैसे हम इंटरवल तक भी नहीं बढ़ेंगे, आया नहीं नहीं सर, मैं ये अभी। कह रहा हूँ जैसे जैसे हमारा राइज होगा, आप यार, पाई तो वही है। क्या जैसे अभी वर्ल्ड बैंक बोलता है कि वर्ल्ड का जीडीपी 10 ट्रिलियन, $100 ट्रिलियन। अगर मैं $10 ट्रिलियन का बिड करने बढ़ रहा हूं, तो किसी और का घाटा तो हो रहा है, घाटा होगा? घाटा तो हो रहा है। अब वो चुपचाप तो नहीं बैठेगा। तो इसीलिए कह रहा था, हमारी इंटरडिपेंडेंसीज हैं, बाहर से भी हैं, तो ये डिसरप्शंस, ये चैलेंजेस आएंगी, इस पिक्चर में ये चैलेंजेस आएंगे, इसको देखते हुए हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, या नो टू वेज अबाउट इट। नेक्स्ट, बड़ा सिंपल दिखा रहा हूं भारत और चीन का, क्योंकि ये फ्लेवर है चीन का। वो दिखा तो रहे हैं जीडीपी कि भाई 5%, 3% ये सब बढ़ेगा करके, लेकिन 2016 में इन्हीं के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिखा हुआ था आर्टिकल कि 2006 से हर साल ये अपनी जीडीपी ईयर ऑन ईयर 2% एक्स्ट्रा फज करते जा रहे हैं। अगर ये है इनके इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो चलाते हैं चाइना के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को, तो मतलब उनका तो तकरीबन 50% तो जो दिखाया है आज के तारीख में, अगर वो 19 ट्रिलियन बोल रहे हैं, क्या वो 19 ट्रिलियन है? अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके साथ साथ पहले तो चाइना G2 का बोल रहा था, अभी निकल के आया है ये सारा जो छुपा के रखे थे, अब अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बताता है, ग्रेट पावर नहीं बोलता है। शी जिनपिंग के पहले 2 टर्म में तो वो ग्रेट पावर रिलेशंस यूएस और चाइना की बात कर रहा था कि चाइना ग्रेट पावर हो गया, अपने आप को ग्लोबल नॉर्थ में बताता था। लेकिन अब अपने आप को डेवलप्ड बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ग्लोबल साउथ में, और ये सब बता रहा है। तो क्वेश्चन यही आता है, क्या वो तब झूठ बोल रहा था, क्या अब झूठ बोल रहा है? अब झूठ सच बोल क्या रहे है? नहीं, एक और चीज है, आपने जो बोला है, चाइना में एक डुअलिटी है। एक और बोलता है कि मैं सुपर पावर हूँ, दूसरी ओर बोलता है कि मैं डेवलपिंग नेशन हूँ। भाई, डेवलपमेंट ये तो तय कर लो कि आप सुपर पावर कहाँ हो हो? या डेवलपिंग और नेशन हो। दोनों ये दिखाया है मैंने, ये आईएमएफ का आउटलुक और ये इनका खुद का जो सीईआईसी का दे रहा है, ये तो अपना 5% से भी नीचे डाल के 3% या 2% तक लेके आ रहे हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है। कल ही मैंने एक वो जो पीक इनटू एवरीडे चाइना में प्रोग्राम में बताया था, ये जो माइकल पेटिस जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी में है, पिछले 20 साल से वो हाँ चाइना में है, उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया है कि चाइना का ग्रोथ रेट जो है वो 2 या 3% के बीच में होगा एक्चुअल। अगर चाइना को 4 से 5% बढ़ना है, तो 2-3 उसका कंडीशनलिटीज हैं। पहला कंडीशनलिटी ये है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी घटना चाहिए और कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, इंटरनल कंजम्पशन बढ़ना ठीक है, चाहिए। अगर चाइना का अगर मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से अभी चल रहा है वो चलेगा, तो बाकी देश जितने, जैसे यूएसए हुआ, ईयू हुआ या इंडिया हुआ, उनको मैन्युफैक्चरिंग कम करना पड़ेगा, वो तो होगा नहीं। इसकी वजह से चाइना का मैन्युफैक्चरिंग में ओवर कैपेसिटी है और वो कहीं बिकेगा नहीं, इसीलिए वो सस्ते में बेच रहे हैं आजकल सब कुछ। दूसरी ओर उसने बहुत अच्छा, एक केक्सिन ग्लोबल का एक एनालिसिस है, उन्होंने ये बताया है कि ये जो कहानी चाइना के साथ हो रहा है पहले जापान के साथ हो गया है। हो चुका। 1986 में उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा था और कंजम्पशन कम था, और उनका उनका जो कोशिश यही था जापान का कि हम इन्वेस्टमेंट छोड़ दें कम और कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाएं। अभी 2023 है, 40 साल हो गया,
और ये हो नहीं पाया पूरा। कुछ हद तक जापान ने हासिल कुछ कर हद लिया, तक कर दिया, बाकी अभी तक हुआ नहीं। अभी तक हुआ नहीं पूरा। चाइना का तो अभी शुरुआत है, बिल्कुल। ठीक है, शुरुआत है। एक और स्टैटिस्टिक देता हूं मैं चाइना का। ये माना जाता है कि अगर आप $1 का उत्पादन होता है तो उसका कंजम्पशन जो है ना 3 गुना होना चाहिए। यानी $1 का उत्पादन है तो $3 का कंजम्पशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि $1 का उत्पादन जब होगा, आखिरी जब वो बिकेगा वो $3 बन जाता है। क्योंकि उसका प्रॉफिट भी लगा लो, हाँ, प्रॉफिट उसका लगता है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन भी लगा कॉस्ट, लो, वो कमीशन भी बीच देना में है। दलाल जो पैसा लेते हैं वो भी लगा लो, सब कुछ लगा लो, $3 बन जाता है। और $3 में बिकता है। $3 का खरीदार चाहिए आपको। चाइना में अमूमन आज के दिन, चाइना में आज के दिन $1 जब उत्पादन होता है, खरीदारी जो है $1.3 ही होता है। 1.3 कहाँ होना चाहिए? $13 होना चाहिए। इसका मतलब इनका जो खरीदारी जो है डबल होना चाहिए। डबल है मतलब 2.6, पर ये अब तो 3 की जरूरत है। और ये जो डेटा है, ये मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये हमारा खुद का डेटा नहीं है, ये चाइना का डेटा है। कैक्सन तो ग्लोबल जो है वो चाइना का है। हाँ, प्रॉब्लम उनका ये है, एज आई सी इट, इट्स अ कैच 22। कैच अभी 22। तक अभी तक इनका एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी था। जो भी इंटरनल कंजम्पशन होता था वो एक्सपोर्ट ड्रिवन से जो पैसे आते थे उससे बंदा थोड़ा बहुत इंटरनल कंजम्पशन कर लेता था। बाकी इंटरनल कंजम्पशन के उसके वैसे पैसे थे नहीं। अब जब एक्सपोर्ट्स क्रैश हो गया है तो बंदे के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि पैसे देने के लिए तो आप एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रहे थे। या शुरू से इसमें कोई उन्होंने और गलत डायरेक्शन ले लिया था कि केवल एक्सपोर्ट करेंगे, इंटरनल कंजम्पशन नहीं बढ़ाया। अभी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कई लोग कह रहे हैं दिस इज अनदर वर्जन ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप। नहीं, ये मिडिल इनकम ट्रैप की बात नहीं है। ये उनका बेसिकली क्या है नो, कि ये लॉट ऑफ पीपल से दैट दिस इज चाइनाज वर्जन ऑफ अ मिडिल इनकम नहीं नहीं, ट्रैप, इस हाँ तरह वो, से। बट एक्चुअल एक्चुअल क्या है कि उनका इकोनॉमी स्ट्रक्चर जो है वो इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस्ड। इम्बैलेंस है, हाँ। ठीक है ना। चाइना's economic structure is imbalanced. उनका 44% of their GDP is investment and export driven, right? And And 30, consumption is only 80. more than 30% was their अपना रियलिटी सेक्टर। Reality sector, ठीक है ना। और एक डेवलप्ड नेशन में इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 30% तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। यहाँ तो 44% है। तो दैट इम्बैलेंस, अगर वो 14% ऑफ द जीडीपी नीचे करेंगे, वेतन कम हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद होनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर वो सब बंद हो गया तो कंजम्पशन कैसे होगा? तो वो अपने आप एक ट्रैप में फंस गए और इसके बाहर आने का इनका कोई चांस नहीं है। दैट इज अनदर, वो एक पढ़ रहा था मैं रिपोर्ट वेयर दे वर सेइंग दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही डजंट वांट टू डिवैल्यू युआन, युआन, कि और खराब हो जाएगा। या और इसमें एक ही पॉइंट बताऊंगा कि ये जो हमारा राइज हो रहा है, भारत का, इंडिया का राइज हो रहा है, अनलाइक वेस्टर्न यूरोप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ईस्ट एशिया विच इज चाइना, पहले जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना, उन सबको पैसे मिले थे एंड सपोर्ट मिला था यूएस से वेस्टर्न यूरोप को। यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप सपोर्टेड दीज पीपल्स ग्रोथ बिकॉज दे वांटेड टू हेम इन सोवियत यूनियन। हमें कोई एड नहीं मिला है, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है, या हम हमें अपने आप धक्का ही कर मिला रहे हैं है। ये सब। हाँ, अपने आप कर रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं, हमें हम धक्का ही मिला है। इसीलिए उनको और वो तंगी हो रही है कि हम इनको ट्रबल करें तो कैसे करें। तो नए नए चैलेंजेस आएंगे, या अगर नए नए चैलेंजेस। आपको याद है तो जयपुर डायलॉग्स में भी मैंने बोला था कि जापान, जर्मनी और चाइना were aided economies, एडेड इकोनॉमी। right? India was an opposed economy, यस। right? और ये अभी क्या है, अभी भी हम एडेड नहीं है। बात यह है कि अभी भी हम और एडेड नहीं है। अभी भी पीठ पीछे अपोज ही है। हाँ, ठीक है ना। तो
हमारा राइज, और दूसरी बात यह है कि हमारा राइज को कोई रोक भी नहीं सकता, वो अलग बात है, विल टॉक अबाउट इट। या प्लीज गो Yes. अहेड। So, next slide. अभी डेवलप होना है, अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बढ़ाना है, अगर हम सोच रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक रीजनल हब बन जाए हम बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्राइसिल कह रहा है कि अगले 5-6 साल के अंदर ₹143 ट्रिलियन इंडिया स्पेंड करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, अर्बन, अदर इंफ्रा में पोर्ट भी आता है, एनर्जी, रोड्स एंड एनर्जी में सबसे ज्यादा है, एंड ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट पे है। एनर्जी, वी आर ऑल्सो गेटिंग चैलेंज्ड बाय एनवायरमेंट, तो वी आर वेल ऑन द रोड। जो हमारा स्टैटिस्टा कह रहा है कि बाय 2030 इंडिया विल हैव 50-50, 50% is going to be green energy and 50% will be your fossil fuels energy, and 50% is renewables. कोई अदर कंट्री दुनिया में अभी तक ये अचीव नहीं कर पाया है और ना कर पाएगा। इंडिया इज द फर्स्ट वन, एंड in the next 2 fiscals, that is by 2025, एडिशनल 45 गीगावाट्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और आने वाला है। और ये उन्होंने दिखाया है किस तरह से चेंज होते जा रहा है, और 2030 तक हम ग्रीन हो जाएंगे। कैन वी गो टू द नेक्स्ट? सो एट द मोमेंट देर इज अ बिग पिक्चर ऑफ इंफ्रा। स्पीड बढ़ गया है, ये नहीं कि पहले इंफ्रा नहीं था, स्पीड कम था। अभी लेफ्ट साइड दिखा रहा है किस तरह से स्पीड बढ़ रहा है, और राइट साइड है जो सागरमाला का हमारा प्लान है। सागरमाला इज होल लॉट ऑफ पोर्ट्स आपके पेनिनसुलर इंडिया में डेवलप होंगे। स्मॉलर पोर्ट्स भी हैं, डीप वाटर पोर्ट्स भी हैं, उनके साथ लिंक आपका रेलवे लाइन, रोड्स, आपके फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है, ये सागरमाला प्रोजेक्ट को भी माइंड में रख के करा जा रहा है। वो इसलिए है कि मैं अगर कुछ इंडस्ट्री मैं ऑफर करता हूं कि भाई मैं बनाऊंगा, आपके लिए बना के दूंगा, तो बनाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करके मैंने भेजना भी है उस देश में, उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और ज्यादा बनाना है तो मुझे एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, उनको एनर्जी भी देना पड़ेगा। एनर्जी अगर फॉसिल फ्यूल में करता रहूंगा तो ग्रीनिंग में, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट होगा। तो इसीलिए ये दोनों तरह थ्रस्ट जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी भी हो, बढ़ता जाए आपका ओवरऑल एनर्जी, ग्रीनिंग भी करते रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी करते रहें, और आपके इंडस्ट्रीज बनाने के लिए आपको मौका मिल जाता है। तो ये पूरा खाका आपने बनाया हुआ है, जिस तरह से आपके टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इम्प्रूव योर इकोनॉमी, ये सारे चीजों की जरूरत है। इसमें थोड़ा ही दिखाया है मैंने, क्योंकि लैंड की भी जरूरत पड़ती है, लेबर की भी जरूरत पड़ती है। लैंड के लिए क्या हुआ है, most of the state governments, in fact I would say all the state governments and union territories, उन्होंने अपने लैंड बैंक बना दिए हैं, क्योंकि सारा लैंड प्राइवेट नहीं है। whole lot of land within the state there are available which is government land। तो उसका उन्होंने एक लैंड बैंक बना रखा है कि विच आर द आइडियल एरियाज इन देयर स्टेट्स स्ट्रोक यूनियन टेरिटरी, जहां इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी भी ले आ सकते हैं। तो स्टेट के अंदर भी, हर स्टेट के अंदर भी उसी तरह से प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है कि भाई वो लैंड बैंक के मुताबिक, क्योंकि वो जो लार एक्ट है उसके मुताबिक अगर आप प्राइवेट लैंड पे जाएंगे तो इट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव। जैसे फार्मर का लैंड हो या कोई सा भी लैंड हो, वेदर इट्स रूरल और अर्बन, इट विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट का लैंड है, इट विल नॉट बी दैट एक्सपेंसिव। तो अभी पहला थ्रस्ट है, जहां तक हो सके उस लैंड बैंक के मुताबिक आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और इंडस्ट्रीज भी लगाइए। तो ये केवल सेंटर ही नहीं कर रहा है, हर स्टेट कर रहा है अपने आप के। एवरी स्टेट wants to get developed and wants to cash in on this period of economic growth। ये मौका है, अगर कोई स्टेट चूक गया ना, वो पीछे रह जाएगा रेस में।
फिर वो पीछे रह जाएगा, फिर वो केवल अपने स्टेट से लेबर ही भेजता रहेगा, वो डेवलप नहीं होगा। देन वी कम टू द एजुकेशन, जो शुरू मैंने बोला था कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के एजुकेशन, दिस इसको क्यों बोल रहे हैं? दिस इज क्रिटिकल फॉर करंट आपके टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, योर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, ये सब के लिए आपको जरूरत है। और एक लेफ्ट में दिखाया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। केवल इनोवेशन क्या है? केवल पढ़ने से फायदा नहीं होता है, यू नीड टू इनोवेट एप्लीकेशन, उसको अप्लाई कैसे करोगे, दैट इज व्हाट इज इनोवेशन ऑल अबाउट। सो फ्रॉम 2015 वी वर 81st in the global innovation index. We have last year come up to 40th. We need to come into the top 10 if you have to evolve economically and become a rising power and continue to be rising power. You have to be in the top 10. अगर टॉप 10 में नहीं है, आपका ग्रोथ जो चार्ट, पाई चार्ट में दिखाया था, स्पीड गोइंग अप, वो उतने स्पीड से नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं अवेलेबल होंगे एट ऑल लेवल्स। इसमें मोस्ट STEM ग्रेजुएट्स, इंडिया इज एट नंबर 2, चाइना स्टिल इज एट नंबर 1, 4.7. However, इस पे यूएस डज नॉट एग्री टू चाइनाज फिगर्स। वो कहते हैं, हम जब साइंस बोलते हैं, वी टॉक ऑफ क्रिटिकल साइंस, जैसे बैचलर ऑफ साइंस करके जाना है। चाइना जो है स्कूल लेवल के साइंस को भी स्टेम एजुकेशन में लेता है, तो वो 4.7 मिलियन बोल रहा है। अब कितना यूएस कहता है 1.7, आई डोंट नो हाउ यूएस हैज अराइव्ड एट, क्योंकि उन्होंने एक ही वर्ड दिया है कि चाइना यूजेस इवन बेसिक साइंस एज पार्ट ऑफ स्टेम। साइंस इज पार्ट ऑफ स्टेम वेदर बेसिक और अदरवाइज, तो उसको एलैबोरेट नहीं किया है एज इट स्टैंड्स एट द मोमेंट, इसीलिए उसको रेड बॉक्स में डाला है। चाइना के पास सबसे ज्यादा है, रीजन भी है। जब टंग शाओपिंग के नीचे चाइना खुला था, 85 में जो एग्रीमेंट हुआ था, tens of thousands of students have gone for this STEM education only. आज के तारीख में भी 16% of the global STEM students, whether at graduate or undergraduate level, are Chinese in the world. When they go out to study in the US and the West, 16% of STEM education students, whether combining both graduate and undergraduate, are Chinese. India comes at around 12-13%. तो तब से चाइना के पीछे पड़ा हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीछे ही हैज टू डू इट, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स करना है। व्हाई? बिकॉज स्टेम प्लस इनोवेशन इज फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। अगर आप इनोवेट नहीं करोगे, मतलब आप तो बाय रोट पढ़े हो, उसको प्यूक कर दिया पेपर में, समझ में आपके कुछ नहीं आया। अगर समझ में आपके कुछ नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। अब इनोवेशन ग्लोबल इंडेक्स में हम 40th आ गए, 10th पे कैसे जाएंगे? यू हैव टू इंक्रीज एट एवरी लेवल, वेदर इट्स अ प्राइवेट कंपनी, वेदर इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, और वेदर इट्स द गवर्नमेंट, you have to increase the amount of money that you spend, budget for R&D. R&D में जब डालोगे पैसा, इनोवेशन को पुश मिलेगा। R&D में इट्स वेरी पुअर, वी आर बेयरली अराउंड 1%, 1% भी मुश्किल से टच कर रहे। पीपल आर 6 to 12%, हम 1% भी मुश्किल से टच करते हैं। जब तक आप R&D का पैसा नहीं बढ़ाओगे एट ऑल लेवल्स, वेदर इट्स गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ गवर्नमेंट, इवन द प्राइवेट सेक्टर, इवन द पब्लिक सेक्टर, यू हैव टू पुट इन मनी फॉर R&D, तब इनोवेशन के लिए पुश मिलेगा। अदरवाइज आपको इनोवेशन के लिए पुश नहीं मिलेगा। R&D 3 लेवल में आपको करने हैं। एक तो प्योर साइंसेस की भाई क्या आ रहा है, दूसरा एप्लीकेशन में 2 लेवल होते हैं। एप्लीकेशन की एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के अंदर मैं ये चीज कैसे डालूं टू इम्प्रूव इट, नया चीज क्या लेके, नया सिस्टम क्या लेके आऊं। तो R&D इज नॉट जस्ट कि भाई मैं पढ़ते रहूं और लैब में करते रहूं। वो लैब में करते रहने से कोई फायदा ही नहीं है। अगर मेरे को अपने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में एप्लीकेशन नहीं है उसका, तो क्या फायदा हुआ उसका? किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। दैट्स लाइक
बॉटमलेस बास्केट, आप पैसे डालते जाओ, कुछ निकलेगा नहीं आपको। तो ये 1/3 या जिस भी लेवल में आपको करना है, ये करना ही करना है। प्योर साइंसेस से ही आपको इमर्जिंग, अभी जो हम जिसको इमर्जिंग और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज बोल रहे हैं, 10 साल बाद कुछ और निकलेगा, उसके 10 साल बाद कुछ और निकलेगा, 5 साल बाद कुछ और निकलेगा। तो उसको समझने के लिए आपको प्योर साइंसेस चाहिए और उसका एप्लीकेशन। तो स्टेम एजुकेशन केवल ये कहने के लिए 2.6 मिलियन या 40% पे आ गया, वो फायदा नहीं होता है। ग्रोथ में आपको, ये आपके ग्रोथ को मतलब फ्यूल नहीं करेगा। इट्स नाइस टू नो कि मेरे पास R&D है, मेरा इनोवेशन हो रहा है, मेरे पास इतने बंदे हैं, इतने बंदे पढ़ के आ रहे हैं, आर दे कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर ग्रोथ? इज द इनोवेशन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर ग्रोथ? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वालिटी, सबसे क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी यस, ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, और वो जो रिसर्च और एजुकेशन आप कर रहे हो उसका कोई फायदा होना चाहिए होना समाज के चाहिए। लिए। यस, जब तक सामाजिक फायदा नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उस बट पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, राइट। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर ना मेरे को बहुत आशा है, क्योंकि जो हम बच्चे देख रहे हैं, जहां हम हैं, दोनों हैं आईआईटी के अंदर, उनके अंदर ये उत्सुकता है, उनके अंदर ये जोश है, और उनके अंदर ये जागृति है कि कुछ करके दिखाना है, राइट। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कल ही मैं आईआईटी में था, वहाँ एक इंजीनियर्स कॉन्क्लेव हो रहा था, जिसमें ये सारे आईआईटी से ये स्टूडेंट्स आए हुए थे, और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट दिखाया। और ये मैं सोच नहीं सकता था कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो उसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ तक कुछ 5-6 प्रोजेक्ट्स थे, तकरीबन 57 प्रोजेक्ट्स थे जो हमने जज किया। मैं एक जज था उसके अंदर। तो उसमें 57 प्रोजेक्ट्स में 5-6 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसके बारे में मेरे को बिल्कुल जानकारी ही नहीं थी, और मैं समझ भी नहीं पाता था, पा रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं वो लोग बच्चे। तो उससे ये जाहिर होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं, वो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का है। करेक्ट, पर बट वही बोल रहा हूं कि अनलेस फंडिंग कम्स, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ना सर। नहीं, नहीं मिलेगा, और राइट। जब वो और देखता है कि मैंने जो बनाया है वो समाज के लिए अप्लाई होके यूज हो रहा है, उसके मन को कितनी खुशी मिलती होगी कि ये मैंने बनाया है। अब वो नहीं आ रहा है। जैसे हम देखते हैं अपने एड में भी ना सर, कि भाई वो पेंट का, वो जर्मन टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्नोलॉजी, कोई बोलता नहीं है इंडियन टेक्नोलॉजी। तो जब वो बोलने लगेगा एड में ये इंडियन टेक्नोलॉजी का बना है, और दूसरे देशों में भी आपकी चर्चा होगी कि ये इंडियन टेक्नोलॉजी से बना है, तब ये स्टेम एजुकेशन और इनोवेशन का फायदा होगा। और वो फायदा तब होगा जब आप R&D के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। या नेक्स्ट। सो ये था बेसिकली जो 4 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स मैंने बताए थे। और भी कई हैं, जैसे हमने हिंट किया था बात करते वक्त, लेबर एंड सारा कुछ था वो है, बट ये क्रिटिकल इश्यूज हैं जिसमें सारे कवर होते हैं। अब देखते हैं जो इवॉल्विंग ऑर्डर हो रहा है, क्योंकि ये वूका वर्ल्ड है, सब कह रहे हैं इवॉल्विंग ऑर्डर है, भारत का स्टेटस क्या है? इसको मैंने एक मैकेनिक्स के साथ समझाया है, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी ये लीवर का लेके मैंने समझाया है कि हमने पहले भी अपने बात में किया था कि इंडिया इज द फल्क्रम। कई लोग कहते हैं इंडिया ब्रिज स्टेट है, मैंने फल्क्रम लिया। फल्क्रम के 3 क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जो बीम है उसके सेंटर पॉइंट को लेके आपका क्लास बनता है। इसके किसी भी इधर फल्क्रम में एक फल्क्रम होता है, बीम के नीचे एक तरफ लोड होता है, एक तरफ एफर्ट होता है। ठीक है, उसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगा कि जियोपॉलिटिक्स के साथ मैंने इसको कैसे मिलाया है। तो पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, फल्क्रम अगर सेंटर में है तो वो फर्स्ट क्लास है। तो लोड और एफर्ट दोनों तरफ होते हैं बैलेंस करने के लिए।
सेकेंड क्लास मतलब लोड सेंटर में है, फल्क्रम ऑफ एफर्ट दूसरे साइड में, फल्क्रम एक साइड में, एफर्ट दूसरे साइड में। थर्ड क्लास होता है जब लोड और फल्क्रम दोनों कॉर्नर में होते हैं और एफर्ट बीच में होता है। अब लेट मी एक्सप्लेन, स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्लास लीवर। क्यों लिया मैंने इंडो पैसिफिक एंड न्यू ऑर्डर। इंडो पैसिफिक में हमने कहा था हम फल्क्रम है, हमारे बिना इंडो पैसिफिक फेल हो जाएगा। यूएसए जो है इंडो पैसिफिक को केवल मैरीटाइम डोमेन में देखता है, और वो भी वेस्टर्न पैसिफिक और इंडियन ओशन। तो उसमें आ जाता है सेंट्रलिटी ऑफ आसियान, और कई लोग सेंट्रलिटी ऑफ इंडोनेशिया बोलते हैं, आसियान का सेंट्रल आ जाता है क्योंकि दोनों के बीच में है वो। लेकिन इंडो पैसिफिक तो केवल मैरीटाइम डोमेन नहीं है, हाँ मैरीटाइम डोमेन काफी है, लेकिन जो भी कंट्रीज जो लैंडलॉक्ड हैं, जो इन्हीं पानियों को इस्तेमाल करते हैं अपने, इन्हीं सागर को इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेड के लिए, वो भी इंडो पैसिफिक में आएंगे ना। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ भूटान नेपाल हैं, उनको तो यही सागर इस्तेमाल करना है उनके सर्वाइवल के लिए, तो वो इंडो पैसिफिक में आ जाते हैं। हम छाबहार, बंदर अब्बास के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल एशिया उसको यूज करता है, तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी इंडो पैसिफिक में आ जाएंगे। अगर हम ईस्ट अफ्रीका में जाते हैं, मिडल ईस्ट में जाते हैं, वेस्ट एशिया में भी, वहां पे भी कई देश हैं जो यहाँ से दूर हैं, लेकिन वो भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे वैसे भी आप देख लो, इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, ये सारे सब अगर पूरे इनको लेते हो, आप देखोगे उस मैप में इंडिया सेंट्रल आ जाए। अगर यूएस का ही लेते हैं वेस्टर्न पैसिफिक तक, हम पूरा पैसिफिक नहीं लेते, वेस्टर्न पैसिफिक तो फिर छोटा रह जाता है, इधर बढ़ जाता है, इंडिया सेंट्रल है। और इंडियन ओशन में आप आ नहीं सकते बगैर इंडिया के, ज्योग्राफी जैसा है, तो इंडिया बीच में है। एक तरफ लोड जो है वो चाइना लगा रहा है, और एफर्ट जो है यूएस और वेस्ट और बाकी देश लगा रहे हैं। आपके इर्द गिर्द लग रहा है आप फल्क्रम है। नेक्स्ट आप फल्क्रम अगर हम ले गाजा, गाजा की लड़ाई में लोड किसने डाला? हमास ने। एफर्ट किसने डाला? इजराइल ने। आप दोनों के साथ हैं। आप लोड हमास ने डाला, लेकिन इंपैक्ट उसका होता है पैलेस्टीनियंस का। मैं पैलेस्टीन और हमास, पैलेस्टीन के लोग और हमास में अंतर कर रहा हूं। तो आप उनके भी नजदीक हैं, आप एफर्ट को भी आपने बैलेंस करना है, क्योंकि आप इजराइल के साथ भी हैं। तो अगेन आप फल्क्रम आते हैं, क्योंकि दोनों साइड जो बाकी देश भी हैं जो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि आप बात करें, क्योंकि अगर आप बात करेंगे आप अनबायस्ड हैं। अभी इस सब में हम फल्क्रम क्यों हैं? क्योंकि हम अनबायस्ड अप्रोच लेते हैं, इसमें किसी एक की तरफ बायस नहीं होते। जैसे चीन ने पहल चहलकदमी की थी कि मैं अरब नेशंस को बुलाऊंगा, इसका सॉर्ट आउट करूंगा, लेकिन दूसरे साइड को इफेक्ट मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि चीन ऑलरेडी बायस्ड है, क्योंकि ये लड़ाई का पूरा प्लानिंग तो चीन में हुआ था। वो चीन को उस नजर से देखते हैं कि प्लानिंग तो आपने की है, सपोर्ट तो आप कर रहे हो। अभी भी उसका नजर आ रहा है कि जब रेड सी में इजराइल के शिपिंग सिविलियन शिपिंग के ऊपर अटैक हो रहा था, चाइनीज शिप वहां पे थी, पीएलए एंटी पायरेसी टास्क फोर्स एडन के पास, वो गए ही नहीं, उसके पास मदद करने जा ही नहीं रहे हैं। जो भी शिप के ऊपर अटैक हो रहा है हूतीस का, वो जा ही नहीं रहे हैं। तो जब इस तरह से अगर आप बायस्ड रहेंगे तो आपको मानने को तैयार नहीं होगा कोई। आप गए हो, आपकी शिप वहां पे है, आप जाते हैं, आपने एक शिप को बचा भी लिया था। अभी नेक्स्ट लेते हैं फल्क्रम यूक्रेन वॉर का। यूक्रेन वॉर में लोड किसने डाला? रशिया ने। एफर्ट कहां से आ रहा है? यूएस एंड यूरोप से, उसको बैलेंस करने के लिए। आप फल्क्रम है क्योंकि आप दोनों साइड के साथ हैं। इसमें मैंने लोड को हमसे दूर किया है। क्यों? क्योंकि
पहले तो हमारी रिलेशनशिप केवल रशिया के साथ काफी थी, स्पेशली डिफेंस के लेवल में। अभी धीरे धीरे आप देख रहे हो, आप रशिया को बैलेंस कर रहे हो यूएस एंड वेस्ट के साथ, सारा का सारा आप रशिया की तरफ जा नहीं रहे हो, ठीक है। तो जब आप ये देखते हो कि कहीं भी आप जाओ, और फलक्रम में अब ब्रिज को भी कह सकते हैं, क्योंकि आप दोनों तरफ को ब्रिज करते हैं। ब्रिज एक अनबायस्ड होता है, एक तरफ से भी गाड़ी जा सकती है, दूसरी तरफ से भी गाड़ी जा सकती है, वन वे ट्रैफिक नहीं होता है ब्रिज के ऊपर, ठीक है, कि भाई एक ही तरफ से गाड़ी जा रही है। एक ही तरफ से गाड़ी जा रही है तो वो ब्रिज बायस्ड है। आपके ब्रिज में दोनों तरफ से जा रहे हैं, वेदर मैं कहूँ नॉर्थ साउथ, वेदर में कहूँ ईस्ट वेस्ट, वेदर में कहूँ आपके जैसे अभी गाजा का हो रहा है, अरब वर्ल्ड एंड इजराइल, यूक्रेन में हो रहा है, वेदर इसे रशिया एंड यूरोप, आप ब्रिज हैं। अगर आप कुछ कहेंगे तो मानने को तैयार है। तो ये करंटली आपका स्टेटस है, और कई लोगों को गवारा नहीं है, कई लोगों को पसंद नहीं है। नहीं, ये एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, और ये जो फलक्रम होने का, इसका एक ही शब्द में बताऊंगा, सबको हमारे ऊपर विश्वास है, विश्वास, एंड इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। यस, नेशंस हैव स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट ऑन इंडिया, और वो उतना आसान नहीं है कि ये स्ट्रेटेजिक विश्वास हमारे ऊपर उत्पन्न करना। बिल्कुल। ये ये कई आई वुड से इट इज नॉट कम ओवरनाइट, ये ओवरनाइट, दशकों के से चला आ रहा है, और उन्होंने आपको परख लिया है और देख लिया है और समझ लिया है कि भाई अगर आप कुछ कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं, जो जितनी आपकी काबिलियत है उसके मुताबिक आप कहोगे कि ये कर सकते हैं, या और जो आप कहते हो कर सकते हैं वो कर देते हो, तो करके देंगे। कर देते हो। तो ये ओके, स्ट्रेटेजिक नेक्स्ट। ट्रस्ट आपके हैं कि आप धोखा नहीं दोगे। चीन के जैसे नहीं है कि एग्रीमेंट कर लिया, ताकतवर हो गया तो वो एग्रीमेंट फाड़ के फेंक लिया, बोलता है अब दोबारा बात करने आओ। ना, आपने एक बार एग्रीमेंट कर दिया, आप उसको फॉलो करते हो। तो ये था सर। नेक्स्ट, तो अभी हम देख रहे हैं हमारी इकोनॉमिक राइज हो गई है, दुनिया में हमारा एक स्टेटस आ गया है जहां लोग, जैसे सर ने कहा था कि आपके ऊपर भरोसा करते हैं, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। तो इसको कोई चुपचाप लेगा नहीं, जो दूसरे देश हैं वो इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस पे आपको चैलेंज आएंगे। पुराने जमाने में होता था, लड़ाई होती थी, थ्यूसिडाइडिस ट्रैप बोलते थे। थ्यूसिडाइडिस ने लिखा था जर्मनी पुराने ग्रीक्स के बारे में, एथेंस और स्पार्टा जब उठ रहे थे तो उनके आपस के बीच में लड़ाई हुई थी कि भाई एक पावर था, दूसरा राइज हो रहा था, वो पावर चाहता नहीं था कि ये राइज करे, तो उनके बीच में लड़ाई हुई। तो उसी तरह से थ्यूसिडाइडिस ट्रैप बोल के उसने सारे समय तक टिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा लेके आया था कि एक देश जब ताकतवर होता है तो लड़ाई होती है, फिर ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता है। लेकिन मेरा मानना है कि आज के तारीख में ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस इतना ज्यादा हो गया है, एंड स्पेशली जियो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, उस तरह की लड़ाई इज द लास्ट रिसोर्ट। There are many more challenges that you can throw to the country to destroy the country from inside, कि उसके राइज को आप रोक दो। लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको अंदर से आप खोखला कर सकते हो, विच इज वॉट वी टॉक ऑफ एज मल्टी डोमेन चैलेंजेस और मल्टी डोमेन थ्रेट्स। लड़ाई इज द लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट स्लाइड। एक मैं ये जो आपने लगाया था सर, इसका दिखाता हूं मैं, मल्टी डोमेन वॉरफेयर आपका लगाया हुआ है। ये सारे डोमेन्स दिखा रखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट से लेता हूं, एक्टर, स्टेट या नॉन स्टेट या स्टेट स्पॉन्सर्ड, कोई भी कर सकता है, आपके पब्लिक ओपिनियन को इफेक्ट कर सकता है, आपके लीगल लूप होल्स को यूज कर सकता है, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कर सकता है आपके ऊपर यूजिंग थिंक टैंक्स, आर्टिकल्स, अदर थिंग्स, आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। कोविड कोई भूल सकता है कोविड ने क्या किया था? आपके एयर, लैंड, सी, स्पेस, ये मिलिट्री डोमेन आ जाते हैं। स्पेस तो साइबर डोमेन में भी है। अभी जब सी का आप देख लो, साउथ चाइना सी और शार्बरो शोल्स में क्या हो रहा है,
किस तरह से चाइना वहां पे आ रहा है। साइबर स्पेस, यू कैन हैव हार्ड, सॉफ्ट, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, सारा कुछ आ रहा है इसमें। साइबर स्पेस में तो आजकल सब डिजिटल जा रहे हैं, तो साइबर स्पेस इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड इट इज लिंक्ड विद स्पेस because cyber also uses space domain to transmit information. Nuclear, your whole electromagnetic spectrum आपको जैम कर देगा, कुछ भी कर देगा। आपके एनर्जी एंड रिसोर्सेज, बिकॉज यू आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट। यूएसए ऑल्सो 50% इज फ्रॉम इनसाइड, 50% तो बाहर से आता ही है, तो उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। योर ओन politics, your own political environment, people can be bought off, can be influenced, can be disrupted. डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, इतने जब डिस्कस किए थे इकोनॉमी में, मैंने काफी चैलेंजेस बताए थे। ये चाहे लड़ाई हो, चाहे पीस हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, 24/7 365 डेज ए ईयर, ये है आपके स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जो हम करना चाहते हैं, उसके ऊपर ये चैलेंज है। आप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप राइज कर रहे हो, और आज के तारीख में भारत का एक स्टेटस है, इंडिया का एक स्टेटस है वर्ल्ड में। लेकिन अगर अंदर से आप खोखले होने लग जाओगे तो आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो वो चैलेंज करेंगे आपको। कुछ एक केसेस मैंने डाले हैं, जैसे निज्जर का केस कनाडा ने उछाला, पनून का केस यूएस उछाल रहा है। हालांकि यूएस हमसे कह रहा है कि हम आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं। क्रॉस बॉर्डर वेस्ट से आपके टेरर अटैक्स हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आपका हो रहा है। मणिपुर इज अ प्राइम एग्जाम्पल जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आपके इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, जहां पे ये पॉलिटिक्स के बारे में दिखा रहे हैं। 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी जो चाइना यूज करता है, आपके लीगल इन्फ्लुएंस और पब्लिक ओपिनियन जो करता है। आपके सोशल मीडिया इज फैंटास्टिक फॉर सबवर्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। तो वो अंदर ही नहीं, बाहर भी आप देख लो किस तरह से आपका नैरेटिव आपके अगेंस्ट 50-50 हो गया है मॉलडीव्स में। एक तरफा पूरा हो गया, दूसरे तरफा एक था, तो वो दो जो बंदे थे वो आपस में उनका सुलह नहीं हो पाया, तो तीसरा जीत गया, और वो अभी बोल रहा है चाइना के लैंग्वेज में। डिले इन टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जी इंजन केस, अभी तकरीबन 2/3 डिजाइन वगैरह दिए हैं, अगस्त में आ जाने चाहिए थे साइन करने के बाद, अभी भी डिले हो रहा है। तो ये मतलब वो होता है कि उनको कुछ चाहिए आपसे, तो अगर आपकी डिपेंडेंसी उनके ऊपर आ रही है इन चीजों में, तो वो उनको डिले करेंगे। तो आपको जरूरी है कि एक ही तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं हेजिंग योर बेट्स, कि आपको दूसरे साइड भी होना चाहिए। जैसे अभी जीई का डिले हो रहा है, आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप साफरान के साथ डील कर दिए थे, जो राफेल का इंजन है, तो अभी उनको डर लग गया, अभी तो और डर लगेगा, क्योंकि बाइडेन आने से मना कर दिया है इंडिपेंडेंस में, एक चिट्ठी में तो मैक्रो तैयार हो गया है। मैक्रो क्या तैयार हो गया, होते होते उसने नेवी के लिए अपना बिड भेज दिया है फॉर द राफेल। सडनली अभी मैं वेट कर रहा हूं कि अब यूएस किस तरह से रिएक्ट करेगा। और हमने जो कंसर्टेड पुश अगेंस्ट यूज ऑफ रशियन ऑयल तो थ्रू आउट देखा है, ये 2 साल में जब से लड़ाई चल रही है, बीच बीच में करता रहता है। और सबसे ज्यादा दुख उनको ये है, चीन को भी तो सबसे ज्यादा चुभता है, कि भी आप वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एमर्ज होके आए। जब जब ये बोले कि यू आर लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया बोला नहीं भी, हम उनके साथ खड़े, हम वॉइस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाज में दम है, उनकी बात कोई नहीं सुनता, तो हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है। और चीन का भी जो फ्लिप हुआ है कि फ्रॉम डेवलप्ड एंड सुपर पावर एंड ग्रेट पावर में से टू अ डेवलपिंग नेशन ग्लोबल साउथ के साथ, ये फरवरी का मीटिंग जब हुआ था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वर्ल्ड यूएन कहता है 150 हैं जो ग्लोबल साउथ में, मतलब डेवलपिंग, डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज 150। अटेंडेंस 127, 125 फिजिकल, 2 ऑन कॉल, वीडियो कॉल। नाउ इट्स नॉट अ जोक, 150 में से अगर 127 आपके साथ खड़े हैं, और आपने पूरा ब्रेकडाउन करके जो G20 के मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होना है, उनके चार्टर के मुताबिक पूरा आपने डाल के सारा कुछ उनको भी इन्वॉल्व करके, जो एजुकेशन का था उसका, यहाँ पे पहला मीटिंग पांडिचेरी में हुआ था, उसके लिए मैं भी गया था फॉर अ ब्रीफ
1 day, half a day only. बट वहां पे भी पूरे ग्लोबल साउथ के आए हुए थे. वहां से सडनली चाइना ने देखा यार दाल तो उधर भी गल नहीं रही है ग्रेट पावर रिलेशंस में, तो वो सीधे फ्लिप आ गया उसका इमीडिएटली आफ्टर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ मीटिंग. देखा कितने आगे कि नहीं नहीं जी हम भी ग्लोबल साउथ में, वो भी मीटिंग करने शुरू कर चुका है. एंड द बेस्ट पार्ट इज वो इंडियन ओशन रीजन का मीटिंग कर रहा है विदाउट बीइंग इन द इंडियन ओशन. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ चैलेंजेस. आप यूएस कह रहा है कि वो हमारे साथ है, वेस्ट कह रहा है हमारे साथ है, निज्जर और पन्नून केस तो वो कर रहे हैं. आपके जो कॉन्सुलेट वगैरह पे अटैक हुए हैं, आपके एम्बेसी के बाहर, हाई कमीशन के बाहर जिस तरह से अटैक्स हुए हैं, वो तो इसी वेस्ट में हुए हैं, एंग्लो सैक्सन्स के कंट्रीज में हुए हैं. उन्होंने क्या किया है अभी तक? नहीं नहीं, केवल स्टेटमेंट दिया कि नहीं नहीं वी लुक एट इट स्ट्रांगली. वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है. तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, दोहराता हूं कि भाई ये ट्रांजैक्शनल है. हर कोई देखना चाहता है कि लाइक एक अच्छा किताब था, पुराने एम्बेसडर थे लेट एल.एम. रंगराजन, उन्होंने लिखा था कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन के ऊपर. उसमें बोला है उन्होंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोवेरियंस ऑफ रिवॉर्ड्स, क्योंकि हमारा इंटरडिपेंडेंसी है. किसी कंट्री को रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, किसी कंट्री को रिवॉर्ड कम मिलेगा. जो स्ट्रॉन्गर है वो ऑलवेज एक्सपेक्ट करता है कि उसको रिवॉर्ड ज्यादा मिले. लेकिन जब से हम राइज करे हैं और हमारा एक स्टैंडिंग आ गया है वर्ल्ड स्टेटस में, हमने कहना शुरू कर दिया है अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि हमको भी तकरीबन हम ये नहीं कह रहे कि बड़े नेशन के जितना ही चाहिए, तकरीबन बराबर रिवॉर्ड चाहिए. तो दिस इज वेयर द कॉन्फ्लिक्ट कम्स. तो जब पॉजिटिव कोवेरियंस ऑफ रिवॉर्ड्स है, कि पॉजिटिव कोवेरियंस होता है जब दोनों नेशन सोचते हैं कि हाँ हम दोनों को फायदा हुआ है. ठीक है, ऑलवेज जो बिगर पार है उसमें क्लियर होना चाहिए, हमें शक नहीं होना चाहिए कि बिगर पार विल गेट अ बेटर चंक ऑफ द केक. बट इफ द स्मॉलर पार ऑल्सो फील्स कि जितना उसको चाहिए था, जितना सोच रहा था उससे थोड़ा ज्यादा मिल गया उसको, दैट इज व्हेन इट्स अ विन विन सिचुएशन. दैट इज व्हेन इज अ पॉजिटिव कोवेरियंस ऑफ रिवॉर्ड्स. दैट इज व्हेन चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज लेस. कॉन्फ्लिक्ट मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट डजंट मीन क्लैश ऑफ आर्म्स. Conflict means building up of more multi-domain challenges. But when there is a negative covariance of rewards from any side, you will have challenges to face and counter, because both sides feel they are lose-lose. कि मुझे भी नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला. And a stronger power which is there will always be able, if it feels it is not getting its pound of flesh, it will throw multi-domain challenges on the smaller part. Sir, you were saying something. No, fine, I'm okay. We'll So yeah. these are the kind of challenges you're going to face, and it will come not only outside, it will come in your extended neighborhood, it will come also in your neighborhood. तो ये आप ये मत सोचना कि आपके नेबरहुड में ही केवल होगा, ना जी. आप जहां जहां आपका इन्फ्लुएंस जा रहा है वो सब जगह पे ये चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा. सो इट्स अ चैलेंज विद इन एंड चैलेंज विदाउट. चैलेंज विदाउट इन योर इमीडिएट नेबरहुड, एक्सटेंड. अभी आप देख लो, अभी तो थोड़ा चुप हो गए हैं, लेकिन पिछले 2 महीने पहले कितना प्रेशर बांग्लादेश में डाल रहे थे इलेक्शंस के पीछे यूएसए. ओके, एंड उनका ऑल्टरनेट क्या है? इस हार्डलाइन इस्लामिक फ्रंट है. तो उनको फर्क नहीं पड़ता. द चैलेंज इज नॉट एज मच टू बांग्लादेश एज इज इट्स टू यू, To India. टू इंडिया. Yeah, India. You know, one thing which I wanted to, one thing, एक चीज मैं बताना चाहता हूं. जैसे भारत का स्तर बढ़ता जाएगा, जो भी जनरल नारायण ने बोला उसके साथ एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि आगे जाते वक्त जैसे हमारा स्तर बढ़ता जाएगा, चाहे आप किसी अंतरराष्ट्रीय विषय के साथ हो या उसके विपरीत हो, किसी देश के साथ हो या विपरीत हो या न्यूट्रल हो, जिस तरीके से फलक्रम में आप बीच में भी खड़े हो, फिर भी चैलेंजेस हैं. क्योंकि हर एक पोजीशन का एक अपना चैलेंज होता है.
Yes. और ये बड़े देश होने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारा ऊपर आता है और ये दायित्व है हमारा कि हम सोच समझकर काम आगे बढ़ाएं, राइट? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है. आई थॉट आई जस्ट रीइंफोर्स इट. Yes, सो yes. या शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? हाँ सर, नेक्स्ट. या सो द नेक्स्ट इज, आगे हम क्या कर सकते हैं? कुछ एक पॉइंट्स डालें, दे कैन बी मेनी मोर. नेक्स्ट सर, कि भाई आप अभी यू आर अ ब्रिज फॉर बोथ नॉर्थ एंड साउथ. तो उनके हर एक के जो जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक नीड, जियो इकोनॉमिक इसलिए डाला है क्योंकि साउथ आ रहा है, उन अपने डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए, तो जियो इकोनॉमिक नीड्स आर देयर. सबके अपने अपने. अब ये नहीं है कि सारे साउथ के नीड्स एक हैं, हर एक के डाइवर्जेंट है, उनको मैनेज कर. बीइंग अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इज नॉट सो इजी. हर एक रीजन का अपना डाइवर्जेंट नीड होता है, उसके चैलेंजेस अलग होते हैं. अगर मैं साउथ पैसिफिक आइलैंड्स को देखूं, अगर मैं लैटिन अमेरिका को देखूं, अगर मैं अफ्रीका को देखूं, इनके अगर मैं देखता हूं तो चैलेंजेस अलग होते हैं. सेंट्रल एशिया को देखूं, वो भी ग्लोबल साउथ में, उनके चैलेंजेस अलग होंगे. अगर आप कहते हो बीच में खड़े होके कि मैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना चाहता हूं, तो यू हैव टू हैव द एक्यूमन टू बी एबल टू बैलेंस दीज नीड्स एंड बी एबल टू पुट इट अक्रॉस एंड मेक श्योर कि नॉर्थ के साथ या किसी अदर प्लेस से फंडिंग एंड देयर नीड्स आर met to a large extent. आप सबको मीट नहीं कर सकते, लेकिन if it's met to a sizable extent, say maybe 40% or 50%, then they will still have faith in you कि यार आपने जो बोला था 50% आपको दे रखा है. इसके साथ साथ आपको खुद के अपने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना है ग्लोबल साउथ के साथ चलते हुए, और ये वूका वर्ल्ड है. तो जब आप वो कर रहे हो, आप उनके चैलेंज को भी वो चैलेंज करेंगे और आपको भी अंदर से चैलेंज करेंगे कि दोनों तरफ आप फेल हो जाओ. और कई दफा अभी बोलने लगे हैं कि आप थर्ड पोल हो. ये गलती कभी मत करना. you should always say that India and the global south is the third pole. आप पोल नहीं हो, आप किसी पोजीशन में नहीं पहुंचे हो. आप पहुंच गए, आप फाउंडेशन में रह जाओगे, दीवार खड़ी नहीं हो पाएगी आपकी. तो ये कभी मत करना. एंड ग्लोबल साउथ के साथ बाहर की बात कर रहा हूं कि भाई ग्लोबल साउथ के साथ आपको उनके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं किस तरह से मैनेज करें. आपको अपने सस्टेनेबल गोल्स भी करने हैं, उनको भी साथ लेके चलना है. किस तरह से चलें, दिस इज अ चैलेंज. जैसे जैसे आउटकम आपके और उनके, केवल उनके नहीं, आपके और उनके सक्सेसफुल होने लगते हैं, आपकी स्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी. सक्सेसफुल नहीं हुए तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कि भाई आपका हो गया, उनका नहीं हुआ, उनका हुआ, आपका नहीं हुआ, दोनों का नहीं हुआ. ये 3 नेगेटिव्स हैं. पॉजिटिव एक ही है कि दोनों का हो रहा है. तो देख लो चैलेंज कितना है, 1 वर्सेस 3. सो इसको केयरफुली बैलेंस करना है. और यहां पे वही कहूंगा, जाकी पांव पसारिए जितनी लंबी रजाई. रजाई जितनी लंबी है उतना ही पैर पसारो, ज्यादा मत कर जाओ. डोंट बाइट मोर देन यू कैन चू. chew. ओके, लाइक व्हाट शी जिनपिंग डिड. बीआरआई में ही बिट ऑफ मोर देन ही कैन चू, और देखो आज क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है थैंक्स टू दैट एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट ही डिड इन हिज फर्स्ट 10 years इन बीआरआई. जो 20 साल में चांग ज़मीन और हुजन टाउन ने जितना इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, या 10 साल में हुजन टाउन ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, इसने अपने 10 साल में उनसे 3 या 4 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करके पूरा, इनके बैंक्स के एनपीए तो हैव गॉन थ्रू द रूफ. तो ये इसीलिए कह रहा हूं, जाकी पांव पसारिए जितनी लंबी रजाई, ज्यादा मत करो, बिकॉज दिस इज वन प्लेस वेयर यू कैन स्टम्बल. एज बिकॉज अभी क्या हो रहा है, सर ने भी एक किया था प्रोग्राम, जिसने देखा नहीं आप देख लेना, कि चाइना का ड्रीम थैंक यू हो गया. वो इतना चाइना ड्रीम बोला था, वो एक्चुअली थैंक यू हो गया.
तो उसका रिएक्शन क्या होगा? हम उसके बगल में, वो देख रहा है कि हम उठ रहे हैं, तो वो यही देखेगा कि जैसे मैंने कहा था कि वो 100 ट्रिलियन का वो तो एक पाई है, अगर मेरा 10 ट्रिलियन का जा रहा है, किसी को उस पिज्जा में कम जगह मिलेगा और एक जो कम हो रहा है वो चाइना का हो रहा है, तो आपके ऊपर तो वो करेगा ही करेगा मल्टी डोमेन थ्रेट, इसमें शक नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल नॉर्थ का डोमिनेंस ग्लोबल साउथ के ऊपर कम होने लगेगा। आपने देखा है जैसे वो 3-4 कू हो गए हैं सहेल में, वेस्टर्न अफ्रीका में, फ्रांस के अगेंस्ट, फ्रैंकोफोन डोमेन में अभी हुआ है, अभी सबको डर लग रहा है कि बाकी डोमेन में भी होने लगेगा। तो अगर आप उन सबके साथ रहे हो तो आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा, हाउ टू मैनेज बोथ द ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। अगर वो नहीं हो रहा है, उनका डोमिनेंस कम होने लगा है अब, तो रिएक्शन किसके ऊपर आएगा? यू हैव बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, उनके ऊपर आएगा ही आएगा, आपके ऊपर भी मल्टी डोमेन थ्रेट देगा। तो इसीलिए बार बार कहता हूं भाई साहब, ये ट्रांजैक्शनल है, कोई भाईबंदी नहीं है। जहां जो दूसरा देश सोचता है कि भाई मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, मैं क्यों भुगतूं, आपके ऊपर ये मल्टी डोमेन चैलेंज जहां तक उसकी काबिलियत है वो डालेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू इंश्योर अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टेबिलिटी, सबको साथ लेके चलना है। यू हैव टू बी स्टेबल इनसाइड। अगर इफ यू आर नॉट स्टेबल इनसाइड, आप कुछ नहीं कर सकते, वही आपको राइज देगा। एंड उसके साथ साथ, क्योंकि मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट इज दी क्लैश ऑफ आर्म्स, लड़ाई जिसको हम बोलते हैं, वो लास्ट रिसॉर्ट है। अगर आप ये सब मैनेज करते हैं तो उस क्या है कि इंटरनल मल्टी डोमेन थ्रेट को आप एक हद तक काबू में ले आएंगे, तो लड़ाई करेगा ही करेगा वो आपको धक्का देने के लिए। उसके लिए ये लास्ट लाइन है, प्यूनिटिव एक्सटर्नल डिटरेंस कैपेबिलिटी दोनों तरफ, एंड इन ऑल द डोमेन्स, एयर, लैंड, सी, साइबर, स्पेस, इंफॉर्मेशन, सब डोमेन में आपको ये कैपेबिलिटी चाहिए। इसमें केवल मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ऑल दीज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर वॉरफेयर। इन सब में आपको यू शुड हैव अ प्यूनिटिव एक्सटर्नल डिटरेंस कैपेबिलिटी, इसको बिल्डअप करना। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, मैं इकोनॉमिकली राइज कर लूंगा फिर उसके बाद करूंगा। बोथ गो टुगेदर, both these capabilities to all your uniformed people, कि एक्सटर्नल भी है, इंटरनल स्टेबिलिटी में भी आपको उन इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस यूनिफॉर्म पीपल हैं, तो उन दोनों को राइज करना है और उनके इन्वेस्टमेंट भी करना है और साथ साथ इकोनॉमी को भी करना है। अगर इनको नीचे करके इकोनॉमी करने सोचो, नहीं होगा। जर्मनी वगैरह कैसे कर पाए थे? क्योंकि यूएस वाज प्रोवाइडिंग दैट सिक्योरिटी अम्ब्रेला टू देम। जापान कैसे कर पाया था? यूएस वाज प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी अम्ब्रेला टू देम। यूएस, जापान, साउथ कोरिया, हम उनका एग्जांपल लेके नहीं चल सकते। हमें कोई सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं दे रहा है, ना हम मांग रहे हैं। हमने अपना अम्ब्रेला को भी करना है और इसको भी चलाना है। इसीलिए लास्ट में डाला है मैंने, यू हैव टू अनेबल अ सुदृढ़, मतलब इट्स सिक्योर, सक्षम, केपेबल, जो एजुकेशन के बारे में बोला था मैंने। डेमोग्राफिक चैलेंज तभी आप मैनेज कर पाओगे, और स्टेम एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। समृद्ध, सुदृढ़ और सक्षम होगे तभी आप में समृद्धि आएगी। समृद्धि इज इकोनॉमी। इकोनॉमी, इन दोनों के बगैर आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती। Unless you are Sudrid and Saksham, you won't be Samrid. And once you are Sudrid, Saksham and Samrid, then you become a Sanrakshak, a net security provider. All these are interlinked. So, ये जो अभी हम घर बनाना शुरू कर रहे हैं, उसमें हमने ये देखना है कि सुदृढ़ता होनी चाहिए, सक्षम होना चाहिए, समृद्धि आएगी इन दोनों के साथ। आपको जैसे जैसे आप इन दोनों को डेवलप करते जाओगे, साथ साथ आपकी समृद्धि भी डेवलप करेगी। इन दोनों, ये तीनों को साथ उठना है। तीनों अगर साथ नहीं उठेंगे, कोई भी एक नीचे रह जाएगा, डावाडोल हो जाएगा। क्योंकि छत में, जैसे घर का छत होता है, दीवार सब एक साइज के होने चाहिए तभी छत लग पाता है। अगर कोई एक दीवार नीचे रह गया या टेढ़ा रह गया तो आपका छत टेढ़ा हो जाएगा। और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इसी तरह से आप बन सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैड टू से सर। या आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक वे कि किस तरीके से भारत उभरता आ रहा है और भारत कैसे बढ़ेगा, इंडिया मार्चिंग अहेड। वी विल टेक सम क्वेश्चंस and then हाँ, we sure. will